Morning children. Today we will be doing chapter 2 of social sciences, grade 5, and what is the name of the chapter? Movements of the earth. So today we are going to discuss about two main movements of the earth, that is rotation and revolution. So before starting the chapter, I would want you to know few things. When we open the chapter, the initial lines are a grandfather is having a conversation with his grandson, and grandson is amazed on hearing this, that in my social science classes my teacher told me that earth is always rotating around its own axis and around the sun also. And Dadu, I'm really confused. Is it so? Is she telling the truth? So Dadu says, undoubtedly beta, the teacher is saying the truth. Our earth, you know what is the shape of our earth? It is oval in shape and it keeps moving on its axis also and around the sun also. So he says, मुझे तो पता ही नहीं लगता कुछ घूम रहा है, और मेरा तो जब मैं रोलर कोस्टर राइड में बैठता हूँ तो मेरा बिल्कुल हेड जोर से स्पिन करता है, बट अभी तो मुझे पता ही नहीं लगता. Then Dadu says, आपको इसलिए पता नहीं लगता because the speed of the earth is uniform. What is uniform? वो सेम स्पीड से गोल गोल घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, इसलिए you don't get to know. Okay? अब उसी टाइप से हम बोलते हैं कि sun rises in the east. Why do we say that? Sun is constant, but our earth is moving from west to east. Repeat after me because I want you to remember this forever कि जो हमारी अर्थ है वो उसकी मूवमेंट कब कहां से कहां तक होती है? वेस्ट से ईस्ट होती है, वेस्ट से ईस्ट होती है. इसीलिए हमें क्या लगता है कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ओके, सो व्हाट डू वी से व्हेन वी आर लाइक वांट टू से दैट Earth is rotating on its axis? Let's discuss that. And why do not we understand that yes, Earth is moving? So I'll give you a very small example. When the train is moving and we are sitting in the train, so everybody asks, when we were very young, मम्मा मम्मा देखो पेड़ कितना जोर से भाग रहे हैं. हम बोलते थे ना जब हम छोटे थे और अभी भी बोलते हैं sometimes. So I'll tell you कि कौन भाग रहा है? Is the train running? Or are the trees running? Undoubtedly, the train is moving at a faster speed. And हमको ऐसा लगता है कि trees भी हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, but ऐसा नहीं होता है. So now let's discuss two main movements of the earth. तो सारा का सारा जितना सरप्राइज है, जितनी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, we will be discussing that. और जब मैं छोटी थी, जब मेरी टीचर ऐसी सी चीजें बताती थी, मेरा भी हेड स्पिन हो जाता था और मैं कहती थी मैं ऑर्बिट याद करूं, मैं एक्सिस याद करूं, मैं इमेजिनरी याद करूं, मैं क्या क्या याद करूं. ठीक है, बट आई विल बी मेकिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, सो रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड. व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन होती है स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. Now look at this orange. This is south pole. This is north pole. अब ये देखो सीधा नहीं है. And this is my earth. ये हमारी क्या है? ये हमारी धरती है. This is our planet Earth. और जो ये है, this is the axis which is imaginary line जो हमें दिखाई नहीं देती है. So very simple. सोच लो कि सिर्फ हमारे सोच में है और इसको हम बोलते हैं imaginary line. और ये सीधी ना होके थोड़ी सी टिल्टेड है. टिल्टेड का मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है. कितने एंगल पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्रीज के ऊपर. कितने डिग्रीज के ऊपर? 23.5 डिग्रीज के ऊपर. ठीक है, और ये क्या कर रही है? इट्स स्पिनिंग स्पिनिंग एंड स्पिनिंग. सो दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब हम करेंगे साथ साथ में रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. व्हाट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन is called revolution. What is this? I said this is sun and this is my earth. ये देखो खुद भी घूम रही है, बट साथ साथ घूमते घूमते ये क्या कर रही है? ये आगे भी चल रही है. फाइन. So this is called, हो गई ना two movements.
बोलोगे तो नहीं कि हमारी अर्थ ऐसे भी घूमती है और साथ साथ जंपी जंपी करके और वो सन के आसपास भी घूमती है. सो दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. फाइन. सो नाउ रोटेशन इज ऑन इट्स ओन एक्सिस and revolution is around the sun. Fine. So now let's talk what is axis. As I told you, axis is an imaginary line that passes through North Pole and the South Pole. And it is tilted also at what degree? 23.5 degrees. Wonderful. And what is orbit now? Because whenever we are talking about rotation, we will be talking about axis. And whenever we are talking about revolution, जिसके अंदर सन आता है, जो हम जोर से एक पूरा पाथ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. नाउ कम्स व्हाट इज ऑर्बिट. तो कंफ्यूज नहीं होना. जब आप अपने घर से विदेशी आते हो तो ड्राइवर भैया जो होते हैं, ही टेक्स अ फिक्स्ड पाथ, है ना. ही कैन नॉट चेंज रूट्स. नहीं तो ऋषु मैम जोर से डांटेंगी. द सेम वे जो हमारी अर्थ होती है, जब वो चक्कर लगाती है गोल गोल सन के चारों तरफ, तो वो एक फिक्स्ड पाथ होता है. सो दैट फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. पाथ अलोंग विच अर्थ revolves around the sun is fixed, called orbit. Orbit is oval in shape. जो हमारा रास्ता है वो पूरा गोल नहीं है. क्या शेप है उसकी? ओवल. इज एन ओवल शेप. इसके बाद आई टेल यू व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द फुल राउंड. अब आप कैन यू से दिस ब्लैक मार्क हियर. जब ये पूरा घूम के आएगी और फिर से मेरे पास इधर से स्टार्ट किया एंड अगेन इट इज कमिंग हियर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन? 24 hours, right? 24 hours on its own rotation and it is called one earth day. अर्थ का क्या हो गया? पूरा one day, one earth day. And अब हम किसका करेंगे? हम अब जाते हैं रेवोल्यूशन की तरफ. इसके अंदर हम सन को भी लेके आते हैं. सो व्हेन द अर्थ इज मूविंग ऑन द फिक्स्ड पाथ, वो फिक्स्ड पाथ क्या था? दैट वाज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट वाज ओवल इन शेप. जब हम इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो हम कितना टाइम लेते हैं? 365 days and 6 hours. कितना टाइम लेते हैं? 365 days and 6 hours to complete one revolution. That is, जब अपनी अर्थ है, that is rotating around the sun. How much time is it taking? 365 days and 6 hours. Fine. इसके अंदर हमको सिखाते हैं जो हमारे 6 hours जो हैं वो 4 years तक, 4 साल तक इकट्ठे होते रहे. सो कितना हो गया? 6 4s are 24. तो एक डे बन गया ना. सो नाउ इन द 4th year व्हाट डू वी से? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? वी हैव 366 days in the leap year. Now you know why leap year comes every year. जिस दिन, जिस साल फैब में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. और 3 years कितने रहते हैं? 28 डेज रहते हैं. और लीप ईयर में कितने दिन रहते हैं? 29 डेज. बिकॉज वो 6 hours इकट्ठे होके कितना बन गया 4 years में? 24. दैट इज इक्वल टू 1 day. वही 1 day 29th of Feb आता है. और 29th Feb को कौन से प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे आता था? दिस इज योर होमवर्क टू बी डन. नाउ ही इज नो मोर विद अस, बट आप ये गूगल करेंगे या अपने मामा पापा से पूछेंगे एंड यू विल आंसर मी ऑन द यूट्यूब ओनली. ओके, वंडरफुल. नाउ टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. इफेक्ट क्या पड़ता है रोटेशन पे? चलो माना अर्थ गोल गोल घूम रही है, इसका क्या क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्यों घूम रही है? इसका फर्क होता है बेटा, डे और नाइट इससे बनते हैं. रोटेशन से क्या बनते हैं? डे और नाइट बनते हैं. और जब हमारी अर्थ जो है सन के आसपास घूमती है, किसमें घूमती है? रेवोल्यूशन में घूमती है. तो उसमें क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं उसमें. जब सन रेज जो होती हैं, ये देखो,
सन की जो रेज अर्थ हमने 4 उसमें दिखाई है, किसमें दिखाई है बताओ? मार्च में, सितंबर में, दिसंबर में और किसमें दिखाई है? जून में दिखाई है। ठीक है, तो जब हमारी सन रेज उसके पास पड़ती हैं, जब ज्यादा पास पड़ती हैं तो क्या होगा? अनडाउटेडली समर्स होगी। ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस सन गेट डायरेक्ट रेज, सो what does it have? It has summer. And part receiving less sun rays, undoubtedly what will it have? जब बिल्कुल धूप ही नहीं होगी तो क्या सीजन होगा? सोचो सोचो सोचो। हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। यस, विंटर्स होंगी। इन मार्च इफ वी सी, नो पोल फेसेस द सन। जब हमारा पोल्स होते हैं, जब वो हमारे सन के पास आते हैं, अगर नॉर्थ पोल हमारा पास आता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर्स होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है उसमें विंटर्स होती हैं। और जब पोल के पास मार्च में और सितंबर में कभी भी कोई पोल हमारा सन को फेस नहीं करता, तो बताओ क्या होगा? हमारे 2 और सीजन्स होते हैं। आई होप यू रिमेंबर दोज 2 सीजन्स। Yes, one is spring and another is autumn. अगर आप भूल गए हो, so let me discuss that too also with you. We have 4 main seasons. Fine. First is summer, जो अब है, खूब सारा स्वेटिंग होता है, but still अभी थोड़ा सा और टाइम है आने में। जून में क्या हो जाएगा? मई और जून में खूब सारी समर्स हो जाएंगी। And this is the end of spring season. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं। आप जब आते हो स्कूल में, विद्याश्री में कितने सुंदर फ्लावर्स हैं फ्रंट लॉन में, सुंदर सुंदर लगते हैं ना। फ्लावर पॉट में भी लगते हैं, वहां पे हमने फ्लावर बेड्स भी बनाए हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। सारे पेड़ वगैरह बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। देन कम्स समर, जो खूब सारी गर्मी होती है, हम एसी चलाते हैं, फैन के बिना रह नहीं पाते हैं। सो दैट इज समर सीजन। देन कम्स yes, autumn. Autumn में क्या होता है? जो अपने पेड़ होते हैं वो अपने सारे लीव्स धीरे धीरे शेड कर देते हैं। That is called autumn. And then comes winters, जब हम खूब सारी जैकेट्स वगैरह पहनते हैं और ठंड होती है। This means उस टाइम पे क्या पास नहीं है हमारे? जो अर्थ जब पास कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, सो वहां पे सन रेज डायरेक्ट वहां पे नहीं आ रही है। Understand? So I hope you must have understood this chapter nicely, wonderfully. Still, if you have any doubts, you can always call me. I've given you my number. So do not hesitate to call me. Okay? Anything else I can tell you? But जब मैं छोटी थी तो मैंने जैसे आपको बताया, I used to be confused, I used to be tense, axis, orbit, imaginary lines, hemispheres, northern hemisphere, southern hemisphere. So मुझे लगता है और आई एक्सपेक्ट मेरे बच्चे जो हैं प्यारे प्यारे जो मुझे सुन रहे हैं वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एंड दे विल स्कोर आउट ऑफ आउट मार्क्स इन दी कमिंग टेस्ट. All the best, good luck, read the chapter nicely and see this video whenever you want to, and do not forget to answer my question. 29 फरवरी को किसका बर्थडे आता है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो अब हमारे साथ नहीं है. He is no more. And one more question should I ask you? Oh, love you. You're so enthusiastic learners. Okay, so I'll be asking you the question. When we have summers, or no, I'll be asking when we have day in India, what is it in Canada? I'll repeat my question. जब इंडिया के अंदर दिन होता है तो कनाडा के अंदर क्या होता है? दिन या रात? Answer me on the YouTube only. Bye bye. Till then, all the best.